Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, as you know, we are discussing structural organization in animals. In the last session, we have discussed about the types of tissues that are found in the animals, in the human beings as well as. Now today we will start with the anatomy and morphology of cockroach. See, here is the diagram of the cockroach. This is the dorsal view of the cockroach. First we will study about the external morphology. The scientific name of cockroach is Periplaneta americana. Periplaneta americana. They are nocturnal omnivores. Nocturnal means they come out at night from their habitat. Omnivores, they are depend on flesh as well as on plants and vegetable remains. They destroy the food material and contaminate them with their excreta, hence they are known as the pests. They also transmit a variety of bacterial disease by contaminating the food material. Now we will discuss about the external morphology. Body is dorsoventrally flattened and is covered by a hard cartilaginous exoskeleton. Exoskeleton means skeleton present outside the body. In each segment, the exoskeleton occur in the form of plates called seclerids. ये जो बाहर वाला एक्सोस्केलेटन है, इसके ऊपर जो हार्ड सी प्लेट्स हैं, दे आर नोन एज द सेक्लीरीड्स. डॉर्सली दे आर कॉल्ड द tergites and ventrally they are called the sternites. Hence they are jointed to each other by the arthropodial membrane. Body is segmented into three regions: head, thorax and abdomen. Head, thorax and abdomen. Head is triangular in shape and is formed by the fusion of 6 segments. The head bears the following appendages. What are the appendages present in the head? A pair of compound eyes, a pair of thread-like multi-jointed antenna. These are antenna that arise from the membranous sockets lying in front of the eyes. Eyes के आगे ही एक membrane होती है, उससे ये antenna arise होते हैं. The antenna, तो antenna का काम क्या है? The antenna have a sensory receptors for monitoring the environment, कि environment कैसा है. ठीक है जी. Next, biting and chewing parts of the mouth. हेड के ही बीच में बिटिंग और चूइंग करने के लिए माउथ पार्ट्स हैं एंटीरियर एंड ऑफ द हेड. हेड के एंटीरियर एंड के पास. नेक्स्ट कम टू द थॉरेक्स. दिस इज द थॉरेक्स. दिस इज द थॉरेक्स. हाँ जी, थॉरेक्स. थॉरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स, नेमली प्रोथोरेक्स, prothorax, mesothorax. This is prothorax, this is thorax, this is prothorax and this is mesothorax. जहाँ पे ये leg originate हुई है, ये mesothorax है. And the head is connected to the thorax by a very short neck. Each thorax segment bears a pair of wings. Bears a pair of walking legs. These are the walking legs. A pair of 4 wings arises from the mesothorax. ये देखिए 4 wings. They arises from the mesothorax, means first central part of the thorax. And a pair of hind wings from the metathorax, पीछे वाले. ठीक है जी. Now come to the abdomen. This is the abdomen. Both male and female have 10 segments in their abdomen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेगमेंट्स हैं, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं. 10th segment bears a pair of jointed filamentous anal circi. These are anal circi. ये anal circi. And but they have a marked difference between their abdomens. देखिए 10th सेगमेंट के ऊपर जॉइंटेड फिलामेंटस एनल सिरसाई है, बट दे आर मार्क्ड डिफरेंसेस बिटवीन देयर एब्डोमेन. इनके बीच में एब्डोमेन में ये एनल स्टाइल है और ये एनल सिरसाई है. दोनों के बीच में एक रिमार्केबल डिफरेंस है. सो दिस इज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच. नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. स्टूडेंट्स, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द cockroach. The digestive system of the cockroach consists of the mouth, the salivary glands, esophagus, crop. This is esophagus, this is crop, gizzard, hepatic cici, midgut, ileum,
कोलन, रेक्टम। ये जो बाहर निकाला हुआ ना ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये तो बॉडी है उसकी, ये बाहर निकाला हुआ है। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय द क्यूटिकल। फोरगट है जो वो अंदर से क्यूटिकल के साथ लाइन है। फोरगट लीड्स इनटू द मिडगट, दिस इज ए मिडगट। ये सारी यहाँ तक फोरगट है, इसोफेगस तक, क्रॉप गिजट तक, उसके बाद मिडगट है छोटी सी। तो एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड द मिडगट, ये फोरगट और मिडगट ये जंक्शन में क्या है, 6 to 8 पेयर्स ऑफ हिपैटिक सिक्काई, ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं, these are hepatic cicae present in the form of ring, they secrete the digestive juices at the junction of the midgut and the hindgut, these ये there is a ring of Malpighian tubules 100 to 150 होंगे ये। they may help in the removal of nitrogenous waste from the body. the hindgut has 3 regions, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। इलियम, ये रहा इलियम, ये कोलन है और ये रेक्टम है, ठीक है जी। द रेक्टम ओपन्स इनटू द आउटसाइड थ्रू द एनस, हेयर इज द एनस, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने इसकी डायग्राम ही याद करनी है और कुछ भी नहीं याद करना है। नेक्स्ट वी विल स्विच ओवर टू द ब्लड वेस्कुलर, दिस इज द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। द कॉकरोच हैज एन ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वेयर the visceral organs located in the body cavity and are bathed in the body fluid. Heart is differentiated into 13 funnel shaped chambers, each with a pair of ostia and one on each of the lateral side. Here the ये जो segments दिखाई दे रही हैं आपको, ये 13 segments हैं। These are the segments of the heart, chambers of the heart. And हीमोलिफ एंटर्स द हार्ट थ्रू द ऑस्टिया। अब ये ऑस्टिया क्या है, हर एक ये जो सेगमेंट है दोनों साइड पे पोर्स हैं इनकी, दैट आर नोन एज द ऑस्टिया। हीमोलिफ एंटर्स द हार्ट थ्रू द ऑस्टिया, ऑस्टिया से हीमोलिम्फ जो बॉडी फ्लूइड है वो हार्ट के अंदर एंटर करता है एंड पंप्ड एंटीरियरली टू द साइनसेस अगेन। तो आगे ये जो है ये हैं जो दीज आर द, दिस इज एओटा, ठीक है जी। तो इनके बीच में साथ में क्या होती हैं बॉडी के अंदर, साइनसेस। साइनसेस होते हैं जैसे गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उस तरह से होते हैं, तो उनके बीच में जो ब्लड है वो चला जाता है, ठीक है जी। तो ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। सिर्फ डायग्राम ही करनी है आपने, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एनाटॉमी है, हमने उसके सिर्फ बॉडी ऑर्गन्स याद करने हैं और कुछ भी नहीं याद करना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सी हियर इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ट्राइलोब टेस्टीज, ये टेस्टीज हैं, वन लाइंग ऑन ईच साइड, दोनों साइड है, साइड इन द 4th to the 6th सेगमेंट। एब्डोमेन की जो 4th से 6th सेगमेंट है उनके बीच में। फ्रॉम ईच टेस्टिस अ वास्ट डिफरेंस, देखो दोनों टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस ट्यूब निकल रही है, एंड एंटर्स इनटू द सेमिनल वेसिकल, ये यहाँ से निकल के इस सेमिनल वेसल के अंदर, ये रहा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसल के अंदर एंटर कर रही है टू ओपन इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट, ये रही इजैकुलेटरी डक्ट, ये देखिए ये रही इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ पे ये ओपन हो रही है। फैलिक ग्लैंड इज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, हियर इज द फैलिक ग्लैंड दैट इज द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। द स्पर्म्स रिमेन इन दिस सेमिनल वेसिकल, इस सेमिनल वेसिकल में स्पर्म्स पड़े रहते हैं एंड ग्लूड टुगेदर, इकट्ठे होके बबल से बना लेते हैं जिनको स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं। दे मूव आउटसाइड बाय द गोनोपोर, गोनोपोर यानी कि जो पोर है जो आउटसाइड लीड हो रही है वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दैट इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द इनर, ये इनर स्टाइल है, मैंने आपको पहले भी बताया था इनर सिरसाई है। इनर सिरसाई के नीचे क्या है, सूडोपेनिस, जिसको हम गोनोपोर बोलते हैं। द एक्सटर्नल जेनिटला इज नोन एज द पेल्मोमियर, और वी कैन पेल्मोमियर, गोनोपियर और गोनोपोर, और वी कैन से पेनिस, ठीक है जी, सूडोपेनिस। तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इट इंक्लूड्स a pair of ovaries, these are pair of ovaries
that lie laterally in the 4th, 6th, 5th and 6th segment of the abdomen. Each ovary is formed of 8 ovules. 8 ovules के साथ ये ovary बनी हुई होती है. ये जो linings हैं, these are ovules. The right and the left oviduct, ये oviduct है, and leads into the vagina, ये vagina के अंदर जा रहा है, which opens into the 8th segment. ठीक है जी. A pair of spermatheca present in the 6th abdominal segment. Spermatheca ये रहा spermatheca, ये छोटा सा bulb like spermatheca है. 3 pairs of chitinous gonophyses are present between the vulva and the anus. Here 3 pairs of, यहाँ पे जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे इधर 1 2 3 हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ब्लैक कलर के हैं. नेक्स्ट इज ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 8 ootheca मीन्स एग्स, ईच कंटेनिंग 14 to 16 ootheca प्रोड्यूस करते हैं, और उस ootheca के हर एक ootheca में 14 से लेकर 16 एग्स होते हैं. द डेवलपमेंट इन कॉकरोच इन फोरोमिटाबोलस मीन्स इट इंक्लूड्स ए लिम्फ स्टेज इन द डेवलपमेंट. जब डेवलपमेंट होती है तो लार्वा स्टेज भी आती है, जिसको हम निम्फ बोलते हैं. निम्फ क्या होता है? निम्फ अपने साइज से 13 टाइम्स बिगर होके फिर अडल्ट बनता है. तो स्टूडेंट्स आपने इसमें सिर्फ डायग्राम्स करने हैं, ओनली एंड द ओनली डायग्राम्स दैट रिप्रेजेंट द फीमेल that are related to the cockroach. In this chapter in NCERT, many other like earthworm and frog, anatomy and morphology of frog and earthworm is also given, but in your theory syllabus or in your 11th class syllabus only cockroach is included. Others are meant for the entrance exams or for NEET. Thank you and have a nice day.